Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Manisha and Shakti are with me, and we are distraught. We are disappointed, distraught. Of course, these are young boys, and they have a long way to go. And honestly, criticism will be too harsh for these young kids who have started playing. But definitely, we were outsmarted by Australia on all accounts. And this is the third loss in last 8 months to Australia in ICC tournaments, and I had one belief today when we went out to play the final. One first feeling was revenge. If we could have won today, at least मन में थोड़ा शांति रहता कि हमने एक रिवेंज ले लिया है और थोड़ा सा वो दुख 19th नवंबर का जो दुख था वो थोड़ा कम होता. But unfortunately, more agony has been piled up in my life now with Australia winning the Under 19 World Cup. And second feeling that I had was we are not chokers in Under 19 because we have won this tournament 5 times, which is actually more than any other nation. And even Australia has won it only 4 times. So I was thinking that the talent pool that India has, अंडर 19 क्या यहाँ पे अंडर 12 भी 1 करोड़ लोग खेलते होंगे क्रिकेट, जो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलते. वो लोग ऑजी रूल्स खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, स्विमिंग में वो लोग ओलंपिक गोल्ड्स लेके आते हैं, हॉकी खेल, मतलब वो लोग सब कुछ खेलते हैं. क्रिकेट इज नॉट इवन देयर नंबर 2 स्पोर्ट. सॉकरूज है जो एएफसी एशियन कप में भी दे हैव लेफ्ट देयर मार्क, and of course they have tennis also. So many games they play, but I didn't expect Australia under 19 team to beat India, and that makes me sad. Especially I had big hopes from Uday Saharan and Sachin Das after the innings they played in the semi-finals. And Australia ने जैसे luckily जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हम सब ने देखा था. They just got lucky with that 10th wicket stand, and that inside edge was another big chunk of luck, that they did. So, what are your reactions, Shakti, Manisha, starting with all of you first? Yeah, I think pretty disappointed, to be frank, because I think they have been the team which has dominated throughout the tournament, like the senior team, right? So there was a slight hiccup in the semis, but I think they still managed to their two top batters, the captain Uday and Sachin Das, they managed to make things stable, and they kind of pulled it off. But yeah, finals, it was like kind of a repeat of meeting when a team meets Australia. That's what I was equating them to, the hockey team, where no matter how good you play, you eventually meet Australia in the finals and then you get beaten by them. So it was like a classic case of that. And yeah, pretty disappointed, to be frank, even though like there are no parallels with the senior team, and it would not be justified to be too harsh on this team. But yeah, I think they should have, maybe they could have batted much better, applied themselves much better, because I think they went into a shell pretty early in the game. Yeah, so I think the openers kind of went into a shell. One of them was there till the end, but yeah, he kind of was the slowest of all. So yeah, I think a pretty similar playbook to what the seniors also displayed earlier in the year. Manisha, Adarsh Singh, India's opener, 8 dot overs. I mean, 48 dot balls in 77 balls. Of course, we are not questioning him. We know very little about him. But what was team management and coaches doing? I mean, it's the highest total ever in an under 19 final that you have to chase. And pitch is not going to be easy. So, क्या कर रहा था आदर्श सिंह वहां पे? मतलब उसने I couldn't even understand what he was trying to do. Yeah. So the two major emotions I felt throughout the match was, one was surprised and also amused. Surprised because I mean, as we know कि India का record है under 19 में, मतलब they were like winning, and so
ऐसा एक था कि ऑब्वियस कि इंडिया जीतेगी, also because of their semi-finale performance. But amused that whatever happened in the ODI World Cup between India and Australia, kind of same thing got repeated here. Like one opening partnership not working, the pacers of opposition doing like the magic, and India, who were playing so good, suddenly get that pressure, and just in the finale they somehow get like defensive, and as you said, Adarsh is a big example of that. As an opener, when you have this many runs in the mind, how are you so slow? And not only you are slow, you are making others play also so slow. एंड में 4 छक्का एक मारने से क्या होगा, जबकि आपका रन रेट आपके बियॉन्ड है अभी। एंड मतलब बट आई मीन वही है ना कि लाइक हम सचिन दास की बात कर रहे थे, हम उदय शंकर की बात कर रहे थे, अब उनको प्रेज भी नहीं कर सकते बिकॉज फाइनल डे में तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए। सो आई डोंट नो which exact player I should even praise, should No, sympathize with. I'll tell you whom to praise. आई थिंक लिम्बानी के अलावा हम किसी और को प्रेज नहीं कर सकते, बस लिम्बानी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और इयन बिशप ने मैच के बिगनिंग में कहा था ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 फाइनल 2 बार हारी है सिर्फ, और दोनों बार इंडिया ने हराया है, तो वो सब चीजों से होप्स तो बहुत बढ़ गई थी। एग्जैक्टली बट पता है दुख किस बात का होता है कि कोई मैकमिलन आके 3 विकेट ले रहा है और तुम्हारा भाई पांडे एक सेम ही हैपेंड विकेट। मैक्सवेल के साइड भी वही सब रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली तो यू आर लाइक सब कुछ व्हाट काइंड रिपीट ऑफ हुआ है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। और द कॉमन ट्रेंड्स आर इंडिया सो टॉस हार गया रिपीटेटिव। एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे मैक्सवेल ने हमारे मेन बैट्समैन को आउट किया, मैकमिलन और जो कि मैक्सवेल से भी घटिया ऑफ स्पिनर है, उसने आज उधर सचिन दास को आउट किया। और जैसे केएल ने वहां पे डॉट्स की लाइनअप लगा दी थी, वैसे ही आज आदर्श सिंह ने 8 ओवर डॉट बॉल खेला है, 48 बॉल्स इन 77 डॉट भाई, बॉल्स। और दूसरी तरफ हरजत सिंह, दूसरा सिंह इतना अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए, रन बॉल 47, हरजत मतलब सिंह यार। तो उसके डैड आए हुए थे भाई, बड़ी दाढ़ी बना के, वो तो भाई मजा ही। उस 84 स्ट्राइक रेट, उसके डैड को कोचिंग देना चाहिए आदर्श सिंह को। तो वो तो मैं फर्स्ट बोलूंगा, युवराज लेकिन सिंह की वाई भाई उसके डैड से। हम्म, मैं बता रहा हूँ ना, ये किसको प्रेज करना है मनीषा। विल प्रेज ऑस्ट्रेलिया टुडे बिकॉज आई हैव सम स्लाइड्स आई एम जस्ट गोइंग टू run through. This is the victorious team of Australia, and we have to praise Beardman and Widler. When the presentation में जब इनसे पूछा who is the fastest bowler among both of you, तो they said कि we have just won the World Cup, so we are just happy. इनका कोई भी बॉलर, कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैटर बॉलर टॉप विकेट टेकर नहीं है। सबने एक एक मैच रेस्ट लिया, एवरीवन टुक ऑफ फॉर वन मैच सो दैट दे कैन बी फ्रेश फॉर नॉकआउट। बट आवर टॉप 3 बैटर्स आर इन द टॉप 5 run scorer list. And even if you see Pakistan and South Africa, they have bowlers in the top wicket takers list. But ultimately, it's the Australian team. They play like a team. They are the true. That's why they are the true champions. You know. Yeah. And honestly, Shikhar, just adding one point here, हमारे analyst, हमारे players ये बोलते हैं कि we shut the noise outside, we don't let it get in our minds. तो अगर आप नहीं लेते हो तो आप कैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही फोकस करते हो? आप एंड फाइनल मोमेंट डी डे पे कैसे आप चोक कर जाते हो? बिकॉज यू आर समवेयर मे बी लिसनिंग एंड गेटिंग अफेक्टेड, और मे बी आपका ऐसे कोचिंग शायद अंदर से ऐसा हो गया है कि दैट यू आर जस्ट लाइक यू डोंट थिंक अबाउट टीम। ऐसे हर बार कैसे वही सेम मिस्टेक, mistake when like done repeatedly, it's no more a mistake, it just becomes like habit or It's a whatever the cultural bad issue the somewhere. culture. Yeah, It's a cultural issue compared to Australia. You know, इट इज having अ बिग that kind कल्चरल of इशू कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे मेरे ऑफिस का एग्जांपल दो, टीममेट्स दे हेल्प ईच अदर गेट सक्सेस। इंडिया में पता नहीं क्यों इतना स्ट्रगल वाला माहौल रहता है। भाई पहले मैं अपना पोजीशन देख लो टीम में। नहीं मतलब it's just sad, and of course yeah, I shared this story with you that Beardman has been mentored by Dennis Lilly. Dennis Lilly का एक rule था, he had a rule that he will not work with anyone until they turn 16, but Beardman was so good, he actually persuaded Dennis Lilly to work with him in Perth. And of course he has groomed people like Mitchell Johnson, and even he had an MRF Pace Academy in Chennai where he coached Zahir and so many other Indian pacers also like Srishant.
Also, we have to recognize there were 4 pacers. Look at the brevity of this team. They went with 4 pacers today in the big final, and Anderson and Straker. Anderson तो last match खेला भी नहीं था. Tom Holland, Yeah. someone else, Tom Campbell was playing the last match, and today Anderson comes in the final and he's bowling so brilliantly. And Straker के So बारे में क्या ही- actually last match का एक fact था क्या? So basically Anderson had been really good, but Straker was, I think, not playing in the previous matches, in the league Yeah. matches. So they had taken a bet on Straker in the semi-finals, and he took a 6 for. Was the And, man of the match completely also. Man knocked- of the yeah, he match. was the man of the match and completely knocked out Pakistan in the initial stages itself. Right, Yes. and today I was watching him bowl, and I think the commentators were saying that he has a action, even though he looks looks are very similar, but he was saying his action is also pretty similar to Ishant Sharma. Yeah, So that Mhm. yeah, so has a very smooth action, and yeah, I think all their bowlers are very good. In fact, Beardman, when he came, he was so accurate, and the line was so probing. So I think. Yeah, I अरे, think hats off. इसने I उदय think सारन apart को जो from स्पेल डाला बियर्डमैन को, इट शुड बी स्टडीड इन फास्ट बॉलिंग क्लिनिक. I mean, he's yeah, an 18-year-old, but Saharan was totally dominated by Beardman. He was yes, lucky. He got an outside edge. Someone appealed, but they have no review, so they couldn't review. उसके 2-3 बॉल उसने इतना एक्यूरेट डाला और एक बॉल स्विंग हुआ, उदय सारन उस पे आउट हो गया. I mean, he और was so भाई good. चेज think में भाई मतलब अपना सबसे बड़ा I बैट्समैन मुशीर का भाई एक सिटर ड्रॉप हुआ था यार. एक सिटर ड्रॉप हुआ था, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया और क्लीन बोल्ड हो गया थोड़ी देर के बाद. और Beardman is think normally उनका opening. मतलब like the attack never stopped. I felt because I Yeah, think relentless pressure Hitler, डाला फास्ट बॉलर्स Hitler ने. and Straker started, I think, the first Yes. 8-9 overs. वो खत्म नहीं हुआ, Beardman आ गया, and he was like bowling much better. In fact, I thought Vidler was bowling really good in the initial overs. उसके बाद Beardman आ गया. मतलब I was like कि भाई क्या है ये? They had a Actually, मतलब पता है, mouthful for a full platter of pacers. It was भाई ये किस बच्चे good फुल इंस्पिरेशन लेके आए मैन साइड से कि ऐसा सिमिलर वर्ल्ड कप रहा है वो अफगानिस्तान में रैकल विन, ऐसा ही पाकिस्तान को समाव हरा के आए ये लोग और फाइनल में क्रश कर दिया भाई वन साइडेड इंडिया को. अच्छा पता है, एक्चुअली ये जो बियर्डमैन है ये नॉर्मली ओपन करता था बॉलिंग, लेकिन ही अंडरस्टूड द नीड ऑफ द आवर, एंड ही अंडरस्टूड कि इनके जो मेन बैट्समैन है वो बाद में आते हैं, सचिन दास एंड उदय सारन, तो इसने अपने आप को डिमोट कर दिया एज फर्स्ट चेंज बॉलर एक्चुअली आज. एंड दैट वाज द ब्रिलियंट प्लान बाय द कैप्टन, जिसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग नाम है उसका. वेबजाइन या ऐसा कुछ है, I guess. वेबजाइन या ऐसा कुछ है. But see, top He played a very performers. good knock also with the bat, the captain. Yeah. He's a very good batsman. Actually, he's a very good batsman. So these are the top performers. आप देख सकते हो, Harry Dixon has just come in by today's performance. Actually, he was one of the contenders for player of the series because he He was also good in semi-final also. He was good in semi-finals also. semi-final. Yeah. Yes, he scored consistently throughout, and he has just entered. But if you see 305 runs पे सचिन दास भी है, and कहीं भी आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का कोई इंडिविजुअल बॉलर तो है ही नहीं इसमें. Yeah. एंड इवन सम अमेजिंग थिंग्स आर लाइक इंडिया का पेस बॉलर्स को, ठीक है हम आज राज लिम्बानी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अगर आप देखो तो टॉम स्ट्रेकर, विडलर और बियर्डमैन का एवरेज इस टूर्नामेंट में 10.5 और 11.71, दैट इज द रेंज ऑफ एवरेज. पाकिस्तान में अली रजा एंड उबैद शाह 10.66 एंड 12.38. Even Quena, Mafaka and Norton are 9 and 18. But our two main fast bowlers, Raj Limbani and Tiwari, they are 16 and 19. So obviously pace friendly conditions जैसा था वहां पे भी ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए conditions को. That's what I felt. Of course, ये Quena Mafaka has joined an elite list of players like Shikhar Dhawan, Shubman Gill, Markram, Mehdi Hasan, युवराज सिंह, टिम साउदी, टटिंडा टाइबू. जस्ट बट स्ट्रेटेजी पे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ना, दिस गाय विबगेन जो है कैप्टन इनका, इसने एक बहुत इंटेलिजेंट काम किया. इसने लास्ट मैच में जो टॉस जीता था ना, ये कितना सेल्फ अवेयर है, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट टू यू. क्योंकि लास्ट मैच जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इसने टॉस जीता था तो इसने बॉलिंग लिया था.
इवन दो इट्स अ बिग हम्म मैच, सेमीफाइनल नॉकआउट है, बट इसने बॉलिंग लिया था क्योंकि ये चाहता था कि ये उनके पेसर्स का स्ट्रेंथ जानता था, पाकिस्तान पेसर्स का स्ट्रेंथ इसको पता था कि वो लोग हम्म डेंजरस है, तो ही डिडंट वांट टू फेस देम फर्स्ट अप, ही वांटेड टू फेस देम लेटर जबकि एक टारगेट है, बट उसे पता था इंडियन पेसर्स इतने डेंजरस नहीं है, तो इसने एक्चुअली आज टॉस जीत के बैटिंग किया, मतलब दोनों टॉस इसने ही जीता है, बट डिसीजन हैज बीन डिफरेंट। सेकंड Wow. एक Okay. कैप्टन, हाँ सेकंड एक कैप्टनसी, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, उसके I बाद विल think डिस्कस। toss ka I will give one parallel. So I think हम्म India was also batting throughout the tournament, and semis mein they deliberately won the toss and chose to bat second, chase basically, because they also wanted to see ki bhai chase, how are they chasing. So I think that was also a good decision and they somehow managed to pull it off. But yeah, I think they just wanted to go against the run of things. सेकंड एक कैप्टनसी ब्रिलियंस का पार्ट जो कमेंटेटर्स ने एक्सप्लेन किया था कि उदय सहारन वो गली में बहुत सारे रन्स, थर्ड मैन की तरफ बहुत सारे रन्स लेता है, सो टुडे दे एक्चुअली सॉ द वीडियोस एंड प्लान्ड फॉर उदय सहारन, दे सेट अप 2 फील्डर्स इन द गली रीजन, देन Okay. इट वाज, मैं एक और चीज बोलूंगा कि नॉकआउट के पहले ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली डिड नॉट प्ले इन बेनोनी, दे यूज्ड टू प्ले इन किम्बरली, they didn't even play one match, but they adapted much better, and India were playing throughout in Benoni, then Yeah. 4 pacers playing in a final taking that risk is amazing. And Oli Peak Yeah. today reverse Yeah. sweeping Mushir, that was one brilliance because the breeze was blowing, he could not hit with the spin, so he reverse swept him. And Oli Peak का भी अगर मनीषा तुम्हें याद होगा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था सेमीफाइनल में, and he's also been one of the finds of the tournament for Australia. I mean, इतना सब होने के बाद तो आप इसको फ्लूक बोल ही नहीं सकते, दिस इज प्योर टैलेंट मैन, प्योर टैलेंट, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना लाइक यू नो, it's so good to see. I mean, I feel happy for them. I mean, pehle we used to say like because of our fan or whatever for bachpana that you know Australians are bad, why they win and all. But I feel that every win is so deserving. It's Yeah. not fluke at You all. as you grow mature, you realize you have to Yeah. appreciate the other side. Yeah, I mean इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी यार, 250 भी हम चेस कर सकते थे, बट जिस तरह से 40 फॉर 1 से 107 फॉर 6 करा इंडियन बैटिंग लाइनअप को, you have to give credit to them. इतना प्रेशर डाल दिया मिडिल ऑर्डर पे. 16 over पे 55. I was telling you guys, right? This is such an impossible thing to. How can I someone think score? it was very similar to what they did to Pakistan actually. Like all their bowlers just ran through their top order, and end mein like somehow because Pakistan also had a very good bowling lineup. That's why they reduced them, like brought the chase down and made it so close. But Yeah. otherwise, 170 chase to kar hi leta Australia. Yeah. But yeah, also credit. I think we should also mention the Pakistan battery of bowlers who have been exceptional. I think एक बंदा तो है top list में, Ubaid Shah, but I think the Ubaid rest Shah. of the people like Ali Raza, Ali Raza, Oh wow. and I think there is Zishan. the gigantic Zishan. Zishan. So, so ये लोग I think they are forced to reckon with in the future for And sure, also along with the yeah. Aussie guys. And also in semi-final when you just win like by 1 wicket and all, ऐसे तो तब आपको मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि आप कुछ भी कर लोगे. वो सेमीफाइनल वैसे ही था जो मैक्सवेल का इनिंग्स था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इट Afghanistan, हैड द yeah. सेम इम्पैक्ट, यू नो, इट Yeah. जेल्स द टीम टुगेदर कि वन विकेट से आप जीत रहे हो, तो मतलब आपको लगता है यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग द वे यू वांट इट. बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मनीषा बोल रही थी इनिंग्स फ्लो, मतलब कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने भी इनिशियली पावर प्ले में 3 विकेट लूज किए, बट दे स्कोर्ड 45 रन्स, then they scored 42 runs, then they scored 49 runs, they scored 51 runs, they scored 66 runs, मतलब कि 10 ओवर के फेज में. बट इंडिया स्टार्ट ही किया 28 रन के फेज से. यू कैन नॉट विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लाइक दैट, मतलब कि just going into the shell is never going to work against a team like Australia. They will just तो ये going into shell फाइनल में कैसे आ जाता है. हाँ, स्टार्टिंग से होता है ऐसा अप्रोच, यू अंडरस्टैंड. स्टार्टिंग में वो दिखा रहे थे स्टैट्स के लाइक दे वर लाइक अनबीटेबल, मतलब क्या खेल रहे हैं. हाउ द सेम थिंग कैन हैपन अगेन, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इधर कोचिंग This में. has to be the pressure of facing Australia. Everyone knows they are mentally strong. Might be You go on that the might back be foot. also the case. Yeah.
It was sad. I think that phase जो Shikhar we were mentioning कि like they were scoring consistently. There was the third half century basically Hmm. where they scored from the second one was in 60 some balls and then this Hmm. guy right that Punjabi guy क्या है उसका Harjas. नाम Harjas. Harjas. Just so he Huh. actually picked up that pace. He hit three sixes he hit to the spinners. And he kind of brought that half century to in some 49 balls. So वहाँ पे he played a very good knock actually, and he was just averaging 8 in all previous matches. So Yeah. like he was supposed to be dropped kind of, but पता नहीं इंडिया के against तो सब form में आ जाते हैं. So yeah, I think Actually, मतलब if you see they were 99 for 3. मतलब जब हरजस आया बैटिंग करने तो 23 overs में they were 99 for 3. तो but he attacked. That was the difference. He yes, still yes. played very attacking. So he attacked beautifully and last में भी Oliver Peak जो है वो भी बहुत 46 of 43 उसने भी बहुत अच्छा इनिंग खेला but you know actually I have to give one thing मैं जो इनसे पूछा गया Birdman was the man of the match तो उससे पूछा what are your future goals so he said Big Bash League and state cricket तो उसको शायद पता नहीं है कि वो 2031 में 1 लाख लोगों को साइलेंस करने वाला है पैट कमिंस की तरह तो he is probably too innocent now to understand that he is going to silence 1 lakh people in Ahmedabad again so unless Modi loses the elections somewhere I think it will be Ahmedabad. That time it was king, this time might be prince. yeah डाउनफॉल वही करेगा प्रिंस और किंग्स सारे और हरजस डायनेस्टी एक का इकलौता डाउनफॉल लेफ्ट हैंडर प्लेयर था इनके मिडिल ऑर्डर में तो आई थिंक वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना था ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके ओपनर के बाद हरजस ही एक लेफ्ट हैंडर है भाई लेफ्ट Harjas हैंडर was हमारा the- तो आदर्श खेलते ही अच्छा, रहा पूरा नंबर 6 अच्छा तक खेला है वो वाला एक फनी फैक्ट उसका बोला कि why he became because he bowls righty he Yeah, does yeah. everything in right but apparently when he He was a bats kid he lefty. was staying in a house where there was a very small lane and वहां पे कुछ विंडो था लेफ्ट में so he used to bat lefty but वो विंडो टूटने का चांस था so he suddenly became right handed so तो वो वैसा Yeah. कुछ एक फंडा आई थिंक all these things come Yes. from He's a pitch right-handed only. bowler, left-handed batsman, correct. Yeah. Nice to hear. एक और पंजाबी बॉलर है एक्चुअली वो खेला नहीं वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया था हरप्रीत हिज नेम इज हरप्रीत समथिंग वो ज्यादा खेला नहीं बट या दे हैव गुड पंजाबी प्रेजेंस इन देयर टीम ऑलरेडी जेसन और तनवीर सांगा भी खेलते हैं बिग बैश लीग में और ऑस्ट्रेलिया सो या But actually, you know, there is one more thing very surprising. Australia actually nearly lost to Namibia in their first match. That was the shocking thing I was just going through. So they had to chase just 95 runs and they were 90. They chased it 95 for 6 with उसमें भी कैप्टन ने एंकर किया था पूरा मतलब नॉक. So you know they had that close shave and after that they are unbeaten like India and Pakistan. They also went unbeaten throughout the but good performance by ऑस्ट्रेलिया हमेशा India. थोड़ा ऐसे रफ पैचेस के साथ जाता है सेमीज में और इंडिया ऐसा फ्लॉलेस रिकॉर्ड के साथ हाँ वही मुझे तो लग रहा था कि उदय सारन ने बोला था अच्छा हुआ सेमीफाइनल में क्लोज मैच हो गया तो हम अब जीत जाएंगे एक क्लोज मैच निकल गया बट मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना डिसअपॉइंटिंग होगा स्पेशली गाइस और कौन से तुम लोगों ने ज्यादा फॉलो किया है वर्ल्ड कप तो और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तुम्हें लगा कि यू नो दे शुड प्ले फॉर लाइक मेंस क्रिकेट नाउ ओवर 19 Mafaka for sure. Mafaka Mafaka जो साउथ Quena अफ्रीका Mafaka. का for हाँ, sure. Quena Mafaka for sure. So And Yeah. पाकिस्तानी in fact, पेसर्स भी he जैसे was ये the लोग man of the जबरदस्त series as well. So Yeah. He's a revelation. So good. हसन अली जबरदस्ती खिलाता है पाकिस्तान भी ले सकता है कुछ पेसर्स Yeah, I think- Ubaid Shah. उबैद शाह को तो लेना चाहिए डेफिनेटली मतलब नसीम Ali एंड Raza उबैद as well. Ali Raza. अली Yes. रजा को लेकिन मतलब भाई वो बॉलिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन वो 15 साल का है तो मुझे लगता है उसको अभी और नहीं एक लेंगे खेले हाँ ही Yeah. स्टिल इन हिज टीन्स अली रजा वंडर बट यार वो मतलब इतना पतला बंदा है एंड इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द bowlers actually look a bit like old but he actually looks like a
15-year-old, मतलब पूरा बच्चा, Hmm. and Yeah. he bowls like and one more surprising thing is कि इसमें पेस नहीं दिखा रहा. I was like, I really wanted to know कि बियर्डमैन का हाँ क्या पेस है. They एक्चुअली never show अंडर pace in 19 में फर्स्ट ऑफ ऑल अली रजा का तो ये भी बॉलिंग एक्शन भी फ्लॉलेस है. बिशॉप उसके बॉलिंग एक्शन flawless का है. Yeah. तारीफ करते करते ही थक ESL गया. में तो आएगा ये लड़का श्योरली. हाँ ESL हाँ में तो आ जाएगा. पीएसएल में आ जाएगा. एंड दूसरा चीज है अंडर 19 में रिव्यूज नहीं है, स्पीड गन नहीं है. सो दे डोंट Speed वांट gun टू दे डोंट वांट क्रिकेटर्स टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोस थिंग. मतलब ये एक हाँ. क्या बोल सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट सिली ये एक्चुअली. I think रिव्यूज this वाला तो बहुत बकवास है एकदम. romanticized version of cricket है, which is not the time now, I हाँ guess. मतलब they don't want kids to challenge the authority of challenge the Yeah. establishment of umpires and हम्म. तो इसलिए रिव्यूज नहीं थे. तो उसका भी एक चीज था और स्पीड गन नहीं था. बट मफाका एंड बोथ आई थिंक इवन दिस गाय बियर्डमैन वाज bowling very fast. I mean Yeah. आई थिंक अगर प्रतीक ने जो क्वेश्चन पूछा तो मैं बियर्डमैन बोलूंगा. एक्चुअली मुझे उसका बॉलिंग बहुत अच्छा लगा. एंड और मुझे ऐसा कोई जनरली लगा हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड थोड़ा लेट डेब्यू करते हैं अपने क्रिकेटर्स का. इंडिया भी आजकल वैसे ही करती है, बट पाकिस्तान तो रॉ टैलेंट को आगे भेज देते हैं. हाँ हाँ वो तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके आते हैं डायरेक्ट. मतलब नहीं वो तो पूरा पाकिस्तान के सबसे रेयर जगह में जाते हैं और वहां से इनफैक्ट ये जो शाज द थ्री ब्रदर्स जो हम लोग वी वर डिस्कसिंग ऑल द उबैद शाह एंड नसीम शाह एंड देयर इज नसीम वन शाह. ब्रदर. पुनैन Actually, शाह. all मैं three of them are in Islamabad PSL team. I don't know Yeah. whether they have played together or not, or if someone has made his कमिंग बैक टू debut. अली राजा क्रिक बस पे एक आर्टिकल मिला है, उसमें लिखा है कि ही इज एक्चुअली द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड कप. इट्स अ मिरेकल. दिस 15-year-old कैन बोल अप टू 145 किलोमीटर पर आवर. दिस इज मैजिक यार. दिस इज मैजिक. Easily उसका बॉल बहुत जिप कर रहा था, तो ऑडिजी है यार ये मतलब तो. या एक्चुअली मुझे ऐसा लगा उबैद ने जो स्पेल डाला था बांग्लादेश के अगेंस्ट शक्ति, वी वर फॉलोइंग दैट गेम रिमेम्बर, जहाँ पे 155 डिफेंड करना था पाकिस्तान को. मतलब सबसे स्टनिंग चीज तो इस वर्ल्ड कप का वही रहेगा कि 200 कभी पाकिस्तान ने कंसीड नहीं किया. दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट इवन कंसीडिंग 200 one time. And That is a big thing, yeah. That is very yeah, big thing. the highest they have considered is 197. That's the highest their bowling has considered. And उसके बाद जो उबैद ने वो स्पेल डाला था, मतलब उसमें वो थक गया था. इफ यू सी ही डिडंट, जैसे हमने देखा था शाहीन ने, मतलब कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में ना पुल आउट कर लिया जॉस बटलर और स्टोक्स जब बैटिंग कर रहा था, तो ही डिडंट बोल दैट लास्ट बॉल. और वैसे नहीं किया उबैद ने. उबैद एक्चुअली थक गया था पूरी तरह से. ही वाज मतलब कि क्रैम्पिंग, बट ही केप्ट ऑन बॉलिंग. और उसने लास्ट ओवर में भी वो विकेट लिया. रैबी जो उनका कैप्टन था, रैबी का, उसका विकेट लेके उसने वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जिताया पाकिस्तान को. इम्पॉसिबल. बट अदर देन दिस 4 सेमीफाइनलिस्ट, कोई और टीम है जिनके प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर्स हैं? मुझे डेवी रेड्डी ने काफी इम्प्रेस किया. न्यूजीलैंड का एक बैटर है वो. उसने 150 भी मारा था एक मैच में. उसने और हाईएस्ट मुशीर स्कोर खान ने भी मारा. बहुत अच्छा. आप लोगों ने अभी तक बैटिंग के बारे में बात नहीं की. मुशीर खान भी एक अच्छा बैटिंग प्रोस्पेक्ट है यार. बहुत अच्छा. नहीं भाई, मेरे लिए तो एक ही बैट्समैन है इंडिया की तरफ से. आज भी उसने जो 9 of 8 खेला ना, वो भी इंडिया सचिन का दास. बेस्ट इनिंग्स था. सचिन Yeah. दास एक ही बैट्समैन है भाई. ही इज क्यों काउंटर आया, अटैकिंग. और इज इट दैट इज हिज पोजीशन? इतना लेट क्यों आया वो आज? नहीं या उसका लेट ही उसको नंबर 3 होना चाहिए यार. हाँ, मतलब नहीं, मतलब नॉर्मली आना चाहिए, ठीक है, बट आज तो काफी खराब खेल रहे थे, जल्दी आ सकता था. एक्चुअली मुझे लगता है उनका स्ट्रेटेजी है कि साउथ अफ्रीका में बॉल मूव होता है अर्ली, तो टू गिव हिम द बेस्ट चांस टू प्ले हिज अटैकिंग गेम, वो उसको थोड़ा लेट रखे हैं. बट आई थिंक ही कैन प्ले. आज उसको आना चाहिए था एक्चुअली, नंबर 4 पे आना चाहिए था, क्योंकि टारगेट थोड़ा हाई था और ये आदर्श बहुत बोर कर रहा था. तो वो आके एक्चुअली मतलब कि खेल सकता था अपना काउंटर अटैकिंग. उसने आते ही एक कवर ड्राइव मारा, बट इतना अनलकी था वो. सॉफ्ट डिसमिसल, मतलब वो मैकमिलन से आउट हो गया इतना फालतू बॉल में. मतलब मुझे इतना गुस्सा है. It's just anti-climax, like. And I think Macmillan के first ball में वो out हुआ. Just imagine. First It was the wicket लिए first Macmillan time ने. the spinner was bowling and वो first ball में ही out हो गया. It was like I sad. think he's the standout talent from India because उसका straight drive, cover drive, pull shots, he has the complete game. मतलब उसका highlights देखने के लिए मैं बैठ सकता हूँ 15 मिनट. मतलब वो ऐसा बैट्समैन है. स्पेशली उसका जो साउथ अफ्रीका वाला नॉक था, उसका हाईलाइट्स मैंने 2 बार देखा हुआ है. मतलब इतना स्पेशल टैलेंट है वो. तो डेफिनेटली मतलब ही इज द स्टैंड आउट प्लेयर. एंड उदय सारन भी आ जाएगा, मुझे लगता है वो डिफेंसिव बैट्समैन है.
बट वो भी हम्म। आ जाएगा मुझे लगता है, बट आई डोंट लाइक हिम दैट मच, मतलब इट्स ओके। और अफगानिस्तान के स्पिनर्स और भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं भाई, यंग यंग स्पिनर्स। एक मैच गजनफर था न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें 91 ऑलमोस्ट डिफेंड कर लिया था अफगानिस्तान ने यार, न्यूजीलैंड ने किसी तरह 92 फॉर 9 में जीता था। मोमेंट और गनजफर बहुत बहुत अच्छे गजनफर बॉलर। एक अच्छा प्लेयर है जो गजनफर कुछ छक्के वक्के मार रहा है, बट एक और ताज अली कोई है इंग्लैंड का बॉलर, वो भी साउथ एशियन ओरिजिन का है, उसने भी कुछ 6 विकेट लिया था। सो हम्म। बट यार अरे ऑस्ट्रेलिया भाई इज साउथ अफ्रीका का वो अटैकिंग बैट्समैन भाई, स्टॉक ऐसा कुछ नाम है ना। स्टॉक, स्टॉक, हाँ स्टीव स्टॉक स्टॉक। भाई, स्टॉक। वो तो स्टॉक है, भाई शानदार लू प्लेयर है। एंड्रे प्रिटोरियस उनका Lou जो Andrews. कीपर है, लू Yes. हम्म। एंड्रे प्रिटोरियस, ही इज अगेन अ वेरी गुड बैट्समैन। और सबसे मस्त यार शक्ति, उसको भूल गए हम लोग यार, राइली नॉर्टन, ही इज फील्डिंग एंड बॉलिंग एंड बैटिंग सब कुछ नॉट एन करता है वो। एंटीवायरस, हाँ। या नॉर्टन, या इंस्पायर्ड फ्रॉम राइली रुसो, या शिखर ने पहले गलती से टॉम हॉलैंड हॉलैंड बोल दिया था आज वीडियो के बिगनिंग में। टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन है एक्चुअली। टॉम कैम्बल है वो, जिसको आज ड्रॉप कर दिए पता नहीं क्यों रैंडमली, बट 4 पेस Because अटैक maybe वाज they वेरी गुड। wanted a yeah, pacer, yeah, all the पेसर, pacers, that's why. बट सो आई थिंक दैट्स बट यार लास्ट व्हाट अ लास्ट गुड जो टूर्नामेंट यार, लास्ट साउथ अफ्रीका में 3 कितने या अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं। मतलब अभी आई नेक्स्ट वाज वर्ल्ड कप भी कमिंग टू दैट मेंस का। एक्चुअली। आई थिंक वो जो लास्ट 3-4 मैचेस हुए हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइनल ऑब्वियसली, तो फाइनल ऑलवेज हैज बीन लाइक डिसअपॉइंट, बैड और डिसअपॉइंटमेंट। सो बट या उससे पहले जो 3 मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वेरी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, क्लोज मैचेस। पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया साउथ अफ्रीका, दोज वर लाइक वेरी वेरी क्लोज good and मैचेस। they were thrillers Epic till the last matches. ball. Yes. So I think या yeah, really good tournament. एक्चुअली लास्ट टाइम का T20 वर्ल्ड कप बहुत बोरिंग रहा था, और इस बार इतना मजा आया देखने में, स्पेशली वो जो Hmm. वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान बांग्लादेश का, फिर ऑस्ट्रेलिया Yeah. का 1 विकेट विन इन सेमीफाइनल्स। Hmm. बट वही है ना, ट्रू ऑजी ग्रेट है भाई, वो कोई और टीम वहां से नहीं जीत सकता था जो जहां से करेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने करेक्ट। जीत गया। सोच वो क्या जो बॉलर है जो आज ओपन किया था बॉलिंग, उसने विडलर और विडलर, मैकमिलन मिलके जीता है। मैकमिलन भी था भाई उस दिन। हम्म। विडलर ने मैच जिता दिया भाई, फॉरवर्ड डिफेंस उसका देखा था, पूरा स्ट्रेच करके हाँ उसने जो राइट। डिफेंस किया था वो इतना It अमेजिंग was था। epic. तो भाई Yeah. 2027 में भी वर्ल्ड कप यहाँ पे होगा साउथ अफ्रीका में, बड़े ओ मेंस का, तो मजा आएगा बहुत। मेंस का। मेंस हम्म। का, हाँ अच्छा हम्म। ओके। केएल जाएगा उसमें, आदर्श का हाँ भाई, फीट केएल रिपीट कैप्टन करने। होगा आई थिंक हमारा, और हम लोग केएल रोले होंगे। कैप्टन है। तो एक्चुअली ये जो पिचेस थे ना बेनोनी में, जहाँ पे ग्राउंड जो जहाँ पे मैचेस हो रहे थे भाई, यहाँ कुछ ज्यादा ही बाउंस था एक्चुअली। इफ यू सी द टॉल या बॉलर्स वेर गेटिंग सो मच बाउंस, स्पेशली या क्वेना। Yeah. या क्वेना तो शॉर्ट हम्म हाइटेड है, बट स्ट्रेकर और ये बियर्डमैन, इनको इतना बाउंस मिल रहा था। हम्म मतलब कुछ कुछ विकेट्स तो बाउंस की वजह से ही। एक्चुअली अगर शक्ति आज तो बोल रहा था ना कि इंडिया वेर नॉट फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट, द रीजन वाज कि एशिया कप में हम सेमीफाइनल में हार गए थे, एशिया कप अंडर 19 में। बट यहाँ पे हम्म एक्चुअली बाउंस ने एशियन टीम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान बैट्समैन फ्लॉप्ड बिग टाइम अगेंस्ट बाउंस, एंड इवन बांग्लादेश बैट्समैन who were या actually stronger team than India in Asia Cup, they could not cope up with the bounce in South Africa Benoni pitch. तो एक बात ये भी, लेकिन जब मेंस वर्ल्ड कप होगा तो बेनोनी में हार्डली मैचेस होंगे, तब बड़े ग्राउंड्स में होंगे, हाँ वांडरर्स, हाँ, सेंचुरियन, वो तो पोर्टुगल। जोहानिसबर्ग के बोरिंग लग गया है वही सेम वेन्यू में देख देख। आई वाज टेलिंग इवन शक्ति टुडे बस लाइक इंडिया ही है जो इतने सारे वेन्यूज में खिलाती है यार। एक्चुअली हम लोग कहीं और जाते हैं तो साउथ अफ्रीका अपने गिने चुने 3, ऑस्ट्रेलिया एमसीजी एससीजी, इंग्लैंड हमेशा अपने लॉर्ड्स और कैनिंगटन वाले 2-4 जगह। पता नहीं क्यों बाकी कंट्रीज अपने ऐसे और ग्राउंड स्ट्रेस क्यों नहीं करती। बट मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो एक जो फर्स्ट स्टेज था वहां पे एक बहुत एक्साइटिंग जिलोंग, मैचेस हुए थे। जिलोंग, जिलोंग में, हाँ, शिलोंग। जिलोंग में बहुत एक्साइटिंग मैचेस हुए थे। बट बट आई थिंक इंडिया में वो सब चीजें भी देखते हैं, द स्टेडियम टू बी वर्ल्ड कप होस्टिंग वर्दी, ये सब फैसिलिटीज होना चाहिए। आई थिंक वो भी कुछ दे डू दैट थिंग आई पॉलिटिक्स का गेस। भी बहुत बड़ा रोल है कि कौन सा पॉलिटिक्स बोर्ड का भी है एक्चुअली। या एंड आई थिंक वो रोटेशन बेसिस पे भी रहता है किसको क्या हाँ, वो मैचेस ट्राई मिलते करते हैं। कि अलग अलग जगह के लोगों को देखने या का मौका मिले या मैच। नहीं मनीषा, हालांकि इंग्लैंड इंडिया सीरीज के दोनों टेस्ट मैच आंध्रा रीजन में ही रखे बेसिकली। नहीं मनीषा, यू वर सेइंग दैट सेम वेन्यू पे बोरिंग है, लेकिन यार पता है मुझे मजा आया क्योंकि पिच वाज सो लाइवली एंड फास्ट बॉलर्स को इतना हेल्प मिल या रहा था, और वो स्कूल के बच्चे बीच बीच में जो गाना वाना गा रहे थे वो सब देख के काफी इंटरेस्टिंग लगा।
I was telling more from the like इस वही सेंचुरियन में होता है, वही वहीं पे होता है, मतलब मैं इंटरनेशनल मैच की बात करूँ, जब हमारे हो तो जैसे बेनोनी ये सब में भी हो, in that way I'm telling you should explore more. एक्चुअली साउथ अफ्रीका में SC20 चल रहा था जो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीता है, तो एक्चुअली Yes. मोस्ट ऑफ द वेन्यूज वेर ऑक्यूपाइड, सो दे ओनली फाउंड Yes. बेनोनी एंड किम्बरली एज द टू वेन्यूज एंड एंड अलॉटेड वो एक दिस. बहुत बड़ा नाम है, पोर्ट बॉर्शम, पता नहीं क्या, वो समझ नहीं आता हाँ, बोलना। ठीक है, तो और ब्लोइम फाउंटेन भी, Bloemfontein, हाँ. So, ब्लोइम फाउंटेन। congratulations to Australia for winning another title and giving another smaller heartbreak this time to India, but adding on to our painful journey with cricket. And yeah, it was fun to follow the close सबको thrillers. हराया है वुमेन्स टीम, अंडर-19 बिग मेंस टीम, और सब फॉर्मेट में हराया है फाइनल्स। क्या बात है यार ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अब क्वाड्रपल या पेंटेकल करना है T20 वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वुमेन्स टाइटल उनके पास है, मेंस टेस्ट, मेंस ODI और अंडर-19 4 ट्रॉफीज अभी उनके पास, दे आर द करंट होल्डर्स. सो आई होप एक्चुअली वुमेन्स में ODI एंड T20 बोथ, सो इट विल बी सेक्सट्यूपल जो बारसा की टीम में CWG भी है ना उनके पास, कॉमनवेल्थ गोल्ड भी है, राइट? कॉमनवेल्थ भी है, सॉरी, सो इट विल बी, आई डोंट नो 7 को क्या बोलते हैं, सेप्टा हेप्टेपल, इट हैज टू बी एन ऑक्टेपल, ऐसा कुछ. so much to look forward to for Australia. Yeah, so much to look forward to Australian cricket dominating and silencing the Mafakas of India. So yeah, it will be interesting. So thanks guys, thank you for joining. Thank you Shakti, Pratik, Manisha, and guys please follow and subscribe our channel Cricket Caviar for more interesting content on cricket. Thank you. Bye. Thank you guys. Bye.